Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Is the screen visible to all of you? Anyone reply? Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So on the last one, we are discussing about association rule. So today we will discuss about a priori algorithm. So on the association rules, we have discussed the association rules held in the property x tends to y. And to hold this property, what we are calculating? We are calculating the support and the confidence value. Okay, so these are the certain association rules, like bread tends to milk, soda tends to chips, bread tends to jam. And to hold, to verify these association rules, we are calculating the two properties. And these two properties is support and confidence. And how we are calculating these two properties? So this is the formula for calculating the support and confidence value. Support is your fraction of transaction that contain both in x and y. It means suppose you are taking association rule containing two items. So if these two items are collectively appears in how many transactions is called your support. And confidence is your how often that is occurred. Matlab, if some transaction occur, if x is occurred, then y is occurred or not. Because in some transaction x will occur, but y will not occur. Okay. So confidence is only that value in which both are appeared. Matlab, how often x is appeared and y will also appear. So in this way, we are calculating the support and confidence value. And if the defined support and confidence, if the calculated support and confidence value is greater than the defined threshold value, then we called it the association rule is valid. Otherwise, it is not valid. ठीक है? अगर जो defined threshold value है उससे ज्यादा होगा तभी हम बोलेंगे कि association rule जो है हमारा valid है. Otherwise, हम उस association rule को discard कर देंगे. क्योंकि सपोज इफ वी हैव द 5 एलिमेंट्स विद इन द ट्रांजैक्शन, अगर 5 एलिमेंट्स है तो 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे एसोसिएशन रूल बना सकते हैं. वी कैन फॉर्म सो मेनी एसोसिएशन रूल, बट द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू विल हेल्प टू सिलेक्ट द एसोसिएशन रूल्स विच आर वैलिड इन नेचर. और वैलिड कैसे होंगे? सो दोज हु आर कैलकुलेटेड सपोर्ट एंड काउंट विल बी ग्रेटर देन द डिफाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू. कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी, अगर उससे ज्यादा है तभी हम उसे कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उस एक्सप्रेशन रूल को हम डिस्कार्ड कर देंगे. ठीक है. तो टू इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स. फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आर दो सेट्स whose support is greater than the defined support, मतलब defined threshold support. So to find out the frequent item sets, there are some algorithms, and these algorithm, the first algorithm is your a priori algorithm. So in the a priori algorithm, we are reducing the number of candidate sets. How we are doing this? How we are reducing the number of candidate sets? We will find out certain item sets in a single pass. We will calculate the support count. If it is greater than the defined support count, then we'll take it. Otherwise, we will discard it. Then we'll go to the next pass, and then we combine the item sets. Again, we count the support. And if the support is greater than the value, then we consider it. Otherwise, we will discard. So in this way, we'll follow the maximum number of passes, and we'll go up to, we'll find the complete frequent item sets. Okay. So let's see. In the a priori principle, if an item set is frequent, then all its subset must be frequent. What this property says? If an item set is frequent means, suppose there is an item set who is a combination of two elements A and B. Okay. So if A and B within the single unit as an item set, two item set A, B
shows a frequent item set. Let's support count is greater than the predefined. Then we can say the subset of AB item set is separate A and separate B. Okay, so these two are also frequent item set. So for any item set, their subset is always a frequent item sets. Okay. So this is sometimes called downward closure property also. Okay. And it is also called anti-monotone property. Okay. A priori principle holds due to the following properties supports measured. And what is the following property? The property shows for every value of x in the y, if x is a subset of the y, okay, x is a subset of y means every x value will present into the y, okay, then the support of x should be greater than or equal to the y value. Okay, so if you have the combination of elements within the item set, like as I said, suppose the item set is A, B, okay, in a single value. So A separately is also a frequent and B separately is also a frequent item set. We'll give an example, then it will clear to you, okay? Suppose an item set never exceeds the supports of its subset. So this is an example. Initially we have null, then we have the item sets A, B, C, D, E. Then from the combination of these two, we built two item set. So these are the two item set. Then from two item set, we built three item set where the three items are combined. Then from three, we'll build a four item set, and from four, we will give the five item set. Okay. So what we do first, we will calculate the support value of separately A for B, for C, D, and E. Suppose all the values are greater than the predefined support count value. So we'll consider all these values. Now the two items set, we'll count the support of two item set, whether AB is occurred together or not, whether AC is occurred together or not, where AD is occurred together or not. So we'll calculate the support count for the two item sets. Then we'll find that AB is not frequent because A and B are not occurring together in the transactions. Okay. So all the remaining three item set, which is a combination of AB, considered to be infrequent. जब AB हमारा एक साथ अकर नहीं हो रहा है, तो AB से बनने वाले जितने भी आगे वाले ट्रांजैक्शंस होंगे, आगे वाले आइटम सेट्स होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे इनफ्रीक्वेंट हो जाएंगे. तो सिर्फ हम कौन से कंसीडर करेंगे, सिर्फ वो वाले कंसीडर करेंगे जहां पर सपोर्ट काउंट हमारा प्री डिफाइंड सपोर्ट काउंट की वैल्यू के से बड़ा होगा, वो वाले. लाइक AC विल कंसीडर वो सपोर्ट काउंट इज ग्रेटर. पर AB से, जैसे ABC हमारा कॉम्बिनेशन बना, ABD, ABE बना, तो ये सारे हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, प्रून आउट कर देंगे. ऐसे फोर आइटम सेट हमारा ABCD, ABCE, ABD और फाइव आइटम सेट. तो ये जो रेड लाइन से आप डॉटेड लाइन से दिख रहे हैं, ये सारे आइटम सेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनका सपोर्ट काउंट उतना ग्रेटर नहीं होगा. So let's check one example from here. This is a very same example of association rule in which we have certain items. Okay, so this is the one item set. All those items which are present in the transaction, we have written separately, like bread, peanuts, milk, fruit, jam. And then we count how many times it is occurred into the transaction. Like bread is occurred, suppose we have 10 transactions, then bread is occurred 4 times. Then peanut is occurred 4 times, milk is occurred 6 times. Matlab out of 10, 6 people are there who are purchasing milk. 6 people are there who are purchasing fruits. Then 5 people purchasing jam. In this way, how many times a particular item occurs, it is represented as your support count. So we write one item set and we count the support value. So support value is 4, 4, 6, 6, 5, 4 is, and then we have a threshold value. Here the threshold value is minimum threshold support is 4. Okay, so now we'll consider only those item sets whose support is greater than or equal to 4. So what are the item set we are considering? We will consider bread, peanuts, milk, fruit, jam, soda and chips, and we'll discard steak, cheese and yogurt, because
they will occur only single time in the transaction. So support value is less than the predefined one, so these three items will be discarded. Okay, so we'll have these ones. So from the considered one, so कितने आइटम कंसिडर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 आइटम ऐसे हैं जिनका सपोर्ट काउंट आपका जो मिनिमम सपोर्ट काउंट है उससे बड़ा है या उसके इक्वल है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इन वन आइटम सेट से वी प्रिपेयर द टू आइटम सेट. लाइक नाउ वी विल टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइटम सेट. ये जो 7 आइटम सेट हमने कंसीडर करे हैं उनके कॉम्बिनेशन से हम जितने भी इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन वो बना लेंगे. लाइक द ब्रेड जैम, पीनट फ्रूट, मिल्क जैम, मिल्क सोडा, fruit soda, jam soda and soda and chips. Okay, so we'll again count the support count. अब हम क्या करेंगे? We'll see into the number of transaction, we'll count the value. Like bread and jam occurs 4 times in 10 transactions. Okay, so we'll write 4 here. Peanuts and fruits occur 4 times in out of 10 transactions. अब हम find out करेंगे कि ये दोनों एक साथ कितनी बार occur हुए transactions में. So these are the support value. Okay, तो हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारे सपोर्ट काउंट हो जाएंगे. बाकी और कोई कॉम्बिनेशन होंगे जिसका सपोर्ट काउंट हमारे 4 से कम होगा तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सारे ही 2 आइटम सेट का 4 के इक्विवेलेंट है, तो वी विल फाइंड दिस. तो यहाँ से हम क्या करेंगे? उसके बाद वी विल 3 आइटम सेट. ठीक है, फर्स्ट पास हो गया, सेकेंड पास हो गया, देन विल मूव टू द थर्ड पास विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वैल्यूज. Like milk, fruit and soda is the 3 item set whose support count is 4. There are many other combination also like peanut, bread, jam. There may be a frequent set. Then fruit, soda and chips can be a 3 item set. So we'll generate all the 3 item set and we'll count the support कि whether ये तीनों item set एक साथ अगर हो रहे या नहीं हो रहे. अगर हो रहे तो we'll write the support count. But यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ एक item set ऐसा आ रहा है जो 4 times है जो मिनिमम सपोर्ट है. So we'll consider only this items. A priori algorithm will show only this कि first we'll consider all the 1 item set, then we'll consider all the 2 item set, then we'll consider all the 3 item sets. Okay, we'll go up to the combinations where it could be able to find that whether it is frequent or not. So this is algorithm in K1. K1 is your value. Generate the frequent item set of the length 1. As I told, first we build the item set of length 1, then repeat until no new frequent item sets are identified. ठीक है, हम उसको क्या करते जाएंगे? रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें न्यू फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स मिलना जो है बंद नहीं हो जाते तब तक. Generate the length k plus 1 candidate item set from the length k frequent item sets. तो हर बार क्या करेंगे? हम एक बढ़ा देंगे. लाइक k इक्वल टू 1 था तो विल कंसिडर 1 आइटम सेट, देन 1 plus 1 is 2 आइटम सेट, देन 2 plus 1 3 आइटम सेट, देन 3 plus 1 4 आइटम सेट्स. तो in this manner we'll move on. Then we prune the candidate item sets containing subsets of the length k that are infrequent. So we'll prune out only those whose support count is not equal to the predefined support count. So whose support count is less, we called it infrequent item. So we'll prune out those. We count the support of each candidate by scanning the database. ठीक है, तो database को scan करके हम support count find out करेंगे. Eliminate candidates that are infrequent and leaving only those that are frequent. तो infrequent को eliminate कर देंगे और जो frequent है उन्हें हम consider कर लेंगे. So this is your algorithm for a priori algorithm. जहाँ पर हम क्या करते हैं? पहले हम कैंडिडेट आइटम सेट्स जनरेट करते हैं साइज k के. k का मतलब है k इक्वल टू 1 है तो 1 आइटम सेट है, k इक्वल टू 2 है तो 2 आइटम सेट. फिर lk इज योर फ्रीक्वेंट आइटम सेट ऑफ साइज k. ठीक है, विल फाइंड आउट कि फ्रीक्वेंट है या नहीं. इन L1 विल कंसीडर ऑल द फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स एंड विल टेक अ लूप हियर फ्रॉम k अप टिल हमारा जो है वो is not equals to 5. जब तक हमारे सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेट नहीं करते हम क्या करेंगे? k प्लस प्लस मतलब पास को आगे बढ़ाते जाएंगे. वी बिगिन करेंगे k प्लस 1 कैंडिडेट जनरेटेड फ्रॉम lk. ठीक है, तो lk से हम क्या करेंगे? सारे कैंडिडेट जनरेट करेंगे फॉर मतलब जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है वही आपका एल्गोरिथम फॉर्म में लिखा है.
इसमें क्या है, हर बार ट्रांजैक्शन टी इन द डेटाबेस will consider each time a transaction T and we increment the count of all the candidates in CK plus 1 that contained in T. ठीक है, तो काउंट करेंगे और उसका कैंडिडेट सपोर्ट हम वहां पे उसके साथ मेंशन कर देंगे. LK1 is equal to the candidate in CK1 with minimum support. ठीक है, और रिटर्न कर देंगे will take the union of all LK. तो जितने भी फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स आ जाएंगे लास्ट में हम उन सबको क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे. ठीक है. What is the joining step? CK is the generated by joining the LK minus 1 with itself. मतलब 2 आइटम सेट से हमारा नेक्स्ट पास में जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड कि हम सारे कैंडिडेट आइटम सेट्स को ज्वाइन करते जाएंगे प्रीवियस स्टेप के. Prune step is any K minus 1 item set that is not infrequent cannot be a subset of the frequent K item set. जो फ्रीक्वेंट नहीं होगा उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. एक कैंडिडेट जनरेशन इन टेस्ट अप्रोच क्या है? एनी सबसेट ऑफ द फ्रीक्वेंट आइटम सेट मस्ट बी फ्रीक्वेंट. जैसे मैंने ए बी का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है कि इफ वी हैव अ आइटम सेट बियर, डाइपर एंड नट्स, सो दिस इज अ 3 आइटम सेट क्योंकि 3 वैल्यूज प्रेजेंट है. अगर ये वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंट है, मतलब ये 3 आइटम सेट अगर फ्रीक्वेंट है, सो इज बियर एंड डाइपर. मतलब इसके जितने भी 2 आइटम सेट और 1 आइटम सेट बनेंगे डिवीजन के बाद, वो सारे भी क्या होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे. ठीक है. और इसका क्या एक रूल है, इफ एवरी ट्रांजैक्शन कंटेन, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के पास हमारे पास क्या होगा, बियर, डाइपर और नट्स होगा, तो इट ऑल्सो कंटेन बियर एंड डाइपर. मतलब अगर कहीं पे 3 आइटम सेट एक साथ आएंगे तो 2 भी वहां पर प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो भी का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है जो तीनों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो 2 को तो सपोर्ट करेंगे ही, और 2 को सपोर्ट करेंगे तो 1 को तो सपोर्ट करेंगे ही. तो जितने भी उसके पार्टीशंस हैं वो सारे भी आपके क्या होंगे, फ्रीक्वेंट ही होंगे. ए प्रायरी प्रूनिंग प्रिंसिपल क्या है? इफ एनी आइटम सेट विच इज इनफ्रीक्वेंट, इट सुपरसेट शुड नॉट बी जनरेटेड और टेस्टेड. ठीक है. तो अगर हमें पता चल गया कि इसके बाद ये इनफ्रीक्वेंट है, तो उसके बाद उसके सुपरसेट हम फॉर्म नहीं करेंगे. अगर कहीं पे हम 3 आइटम सेट पे पहुंच गए और वो ही हमारा इनफ्रीक्वेंट आ गया, मतलब उसका सपोर्ट काउंट कम है, तो उसके बाद हम 4 आइटम सेट को जनरेट नहीं करेंगे. ठीक है. तो मेथड क्या है हमारा, जनरेट K plus 1 कैंडिडेट आइटम सेट फ्रॉम लेंथ K फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स एंड टेस्ट द कैंडिडेट्स अगेंस्ट द डेटाबेस. हर बार एक एक बढ़ाते जाएंगे और डेटाबेस से उसको वेरीफाई करेंगे. द परफॉर्मेंस स्टडीज शो इज एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी. ये देख लीजिए, आपको ये भी एक एग्जाम्पल है. यहाँ पर क्या है, आपकी कोई ट्रांजैक्शन आईडी दे रखी है और कुछ आइटम्स दे रखे हैं. ठीक है. तो जो हमारा पहला डेटाबेस है उसमें क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन मतलब 4 ट्रांजैक्शन ही दे रखे हैं हमारे पास. ठीक है. 4 ट्रांजैक्शन है, मतलब डेटाबेस में क्या है, 4 ट्रांजैक्शन है हमारे पास. दीज आर द ट्रांजैक्शन आईडी, और ये जो है हमारे पास आइटम है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या आइटम है, ए सी डी. दूसरे में क्या है, बी सी ई. तीसरे में ए बी सी ई है, और चौथे में बी और ई है. ठीक है. तो ये हमारी ट्रांजैक्शन आईडीज है और ये उनके आइटम्स हैं. तो अगर हम देखेंगे तो इसमें कितने आइटम्स यूज हो रहे हैं, 5 आइटम्स यूज हो रहे हैं, ए बी सी डी और ई. तो फर्स्ट स्कैन में क्या करेंगे, हम 1 आइटम सेट ले लेंगे, ए बी सी डी ई. ठीक है. 5 वैल्यूज को हमने अलग अलग ले ली सेपरेटली. 1 आइटम सेट का मतलब ओनली 1 वैल्यू इज प्रेजेंट. अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इनका सपोर्ट काउंट कितना है. तो हम देखेंगे ए कितने टाइम्स अकर हुआ है. ठीक है. तो ए के सपोर्ट को फाइंड आउट करने के लिए ए कितनी बार अकर हुआ है, ट्रांजैक्शन 1 में अकर हुआ है और ट्रांजैक्शन 3 में अकर हुआ है, तो वी राइट इट 2 हेयर. ठीक है. फिर उसके बाद बी का सपोर्ट काउंट हम फाइंड आउट करेंगे. तो बी कितनी बार अकर हुआ है, ट्रांजैक्शन 2 में अकर हुआ है, 3 में अकर हुआ है, 4 में अकर हुआ है, तो वी राइट 3 हेयर. सिमिलरली सी का काउंट करेंगे तो सी हमारा 1 में आया है, 2 में आया है, 3 में आया है, तो वी राइट 3 हेयर. डी हमारा सिर्फ एक ही बार आया है ट्रांजैक्शन 1 में, तो वी राइट 1. देन ई हमारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में आया, तो वी राइट 3 है. ओके. तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सपोर्ट काउंट की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दी. तो ए की वैल्यू 2 है, बी की 3 है, सी की 3 है, डी की 1 है और ई की 2 है. और जो मिनिमम डिफाइंड सपोर्ट काउंट है वो यहाँ पर है 2. मतलब आपका कोई भी आइटम तभी फ्रीक्वेंट होगा जब उसका डिफाइंड सपोर्ट काउंट 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा.
तो ये तो C1 स्टेप था हमारा कैंडिडेट जनरेशन, जहां पे हमने सारे कैंडिडेट को जनरेट किया और उनके सपोर्ट काउंट को लिख दिया। C1 के बाद हमारा L1 स्टेप आएगा। L1 इज अ प्रूनिंग स्टेप, जहां पर हम प्रून आउट कर देंगे वो वैल्यूज जो इनफ्रीक्वेंट है, ठीक है, सो दोज आर इनफ्रीक्वेंट। तो इन दिस C1 we find out only the DE value is infrequent because its support count is not 2, it is less than 2, so we discarded it. Now we have only A, B, C and E. Okay, we write the same values here also. Now we'll move on to the scan 2. अब स्कैन 2 में हम क्या करेंगे, A, B, C, E के सारे कॉम्बिनेशंस लिख देंगे, ठीक है, A, B, A, C, A, E, B, C, B, E and C. So these are all the combinations. So we generated the candidate, ठीक है। तो C2 स्टेप में क्या हो गए, सारे 2 आइटम सेट हो गए। अब 2 आइटम सेट्स में हम क्या करेंगे, सबके सपोर्ट काउंट को फाइंड आउट करेंगे सेकेंड स्कैन में। तो अब लेट्स सी A, B इज अकर्ड टुगेदर और नॉट। तो सिर्फ थर्ड ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें A, B जो है वो टुगेदर मतलब एक साथ हुआ, अकर हुआ है, तो वी राइट 1 हियर। नाउ विल काउंट फॉर द सपोर्ट काउंट 1 और C। 1 और C कहाँ कहाँ पर आए हैं, ट्रांजैक्शन 1 में भी आए हैं और ट्रांजैक्शन 3 में भी आए हैं, तो वी राइट 2 हियर। A, E कहाँ पर आया है, सिर्फ थर्ड ट्रांजैक्शन में आया है A, E एक साथ, तो वी राइट 1 हियर। देन वी गो फॉर B, C। So in the second transaction and in the third transaction, we have BC together. We write 2. Then we'll go and count for BE together. So second, third, and fourth, in which both B and E items are present. So we write 3. And for CE, we have the transaction number second and third. So we write 2 here. तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो भी 2 आइटम सेट्स थे उन सबके सपोर्ट यहाँ पर काउंट कर लिए। अब देखिए जो रेड हाईलाइटेड है A, B और AE, इनका सपोर्ट काउंट क्या है, हमारा 1 है, तो मतलब A, B और AE क्या हो गए, हमारे इनफ्रीक्वेंट हो गए। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे प्रूनिंग स्टेप में, और हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, AC, BC, BE और CE, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या कर देंगे, हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे थर्ड आइटम सेट के यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने आइटम सेट्स हमारे बनेंगे, थर्ड आइटम सेट एक हमारा बनेगा BCE और एक हमारा बनेगा ABC, ठीक है। थर्ड आइटम सेट में क्या होगा, एक तो BCE बनेगा और एक हमारा बन जाएगा ABC, ठीक है, यही पॉसिबल होंगे, ठीक है, या कुछ और भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो जो भी आपके पॉसिबल आइटम सेट्स होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे C3 में, ठीक है, और फिर से सबके सपोर्ट काउंट करेंगे। तो सिर्फ एक ही आइटम सेट होगा, BCE जो आइटम सेट है वो सपोर्ट काउंट उसका क्या है, 2, क्योंकि BCE जो है ट्रांजैक्शन नंबर 2 और 3 में 2 बार अकर हुआ है, तो वी राइट 2 है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, हर बार कैंडिडेट जनरेट करेंगे और कैंडिडेट जनरेट करने के बाद उनके सपोर्ट वैल्यूज लिख देंगे। अगर सपोर्ट वैल्यूज हमारी प्री डिफाइंड से कम है तो वो आइटम क्या कहेंगे, इनफ्रीक्वेंट आइटम हो जाएंगे, उनको हम इलिमिनेट कर देंगे। इलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास बचे हुए होंगे उनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और फिर से सपोर्ट काउंट करेंगे और उसके बाद फिर से एलिमिनेशन राउंड होगा। तो हर बार ए प्रायरी एल्गोरिथम में क्या होता है, पास 1 में क्या होगा, कैंडिडेट जनरेशन एंड प्रूनिंग, पास 2 में कैंडिडेट जनरेशन एंड प्रूनिंग, पास 3 में कैंडिडेट जनरेशन एंड प्रूनिंग, ठीक है। ऐसे करके हमारी एल्गोरिथम तब तक जाती है जब तक कि हमारे सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट जो है डिस्कवर नहीं हो जाते। जब सारे डिस्कवर होंगे तो विल टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। अब यहाँ पे जो लास्ट इसका आंसर होगा वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ L1 प्लस L2 प्लस L3, मतलब इन सबका यूनियन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे सारे फ्रीक्वेंट आइटम सेट होंगे, लाइक A, B, C, E and AC, BC, BE, CE and BCE। सो ये वाले जितने भी आइटम सेट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे ऑल फ्रीक्वेंट आइटम सेट होंगे, ठीक है। होपफुली ये क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो मैंने ना एक आपके गूगल क्लासरूम में अरुण के पुजारी की एक बुक की PDF भी अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो उस बुक की PDF से आप लोग जो हैं वो वहां पर देख लीजिएगा, तो वहां से आप थ्योरी पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ए प्रायरी एल्गोरिथम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो दोनों पार्ट्स हैं आपके कैंडिडेट जनरेशन की और प्रूनिंग स्टेप। तो हर बार आप कैंडिडेट जनरेशन करेंगे, सपोर्ट काउंट करेंगे और उसके बाद प्रून आउट कर देंगे जो इनफ्रीक्वेंट है।
ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एल्गोरिथम है आपके इसमें। तो आज हमने ए प्रायरी एल्गोरिथम पढ़ी है, कल नेक्स्ट टर्न पे हम कोई और एल्गोरिथम कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल विद द लेक्चर। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। थैंक यू मैम। अंकित समझ में आ रहा है? यस मैम। पढ़ लेना बुक से भी थोड़ा, बाकी सारे लोग भी बुक भी पढ़ लेना, है ना? ओके। ओके।